السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج زیادہ دیر تک کلاس نہیں ہو پائے گی، تھوڑا سا مسئلہ ہے زوم کا۔ ابھی فری والا چل رہا ہے تو اس میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو پائے گا، تو انشاءاللہ آج بھی آج جو ہے تھوڑا سا کر کے دیکھیں گے۔ ابھی اس سے پہلے جو ہے مالک یوم الدین تک ہو گیا تھا، تو مالک یوم الدین تک کا ہو گیا تھا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا۔ اب آگے اس کے انشاءاللہ اس کے آگے کر کے رکھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک جو ہے یہ خاص کر کے صرف اور صرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم ایاک جب بولیں گے تو صرف اور صرف کا معنی آئے گا، ٹھیک؟ تو ایاک، یہ دیکھیں ایک ایا اور اس کے ساتھ کا جو کہ مخاطب کی علامت ہے، کہ کا جب آتا ہے تو اس کا معنی آپ ہوتا ہے۔ ایک واحد مذکر یعنی کہ کسی ایک مرد کے ساتھ جب ہم مخاطب ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں کہ ایا کا کہا گیا ہے، تو پہلے ہم ایا کو الگ کریں گے، پھر اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کا ہے تو کا کو بھی الگ جب ہم کر لیتے ہیں تو اب ہم ان دونوں کا الگ الگ کر کے ترجمہ کریں گے۔ تو ایا کا ایک خاص کر کے معنی ہوتا ہے جو کہ خاص صرف اور صرف آپ، ٹھیک؟ تو یہاں پر صرف اور صرف کا معنی لیا جاتا ہے، تو ایا کا صرف اور صرف آپ کا، صرف اور صرف آپ کی، ٹھیک؟ اسی طرح سے اگر ہم اس کو اور بھی مثال کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں سمجھے تو یہ جو ہے ہو یا یہ سب جو علامات ہیں ان سب کو اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں اور اس کو ہم دیکھیں کہ اس کا کیا معنی آتا ہے۔ تو ہم دیکھیں یہاں پر ہو جو ہے اس کا معنی آتا ہے تو اس خاص، ٹھیک؟ اس کی، ٹھیک؟ خاص کر کے یہ مانا جاتا ہے یعنی کہ اس کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں، ٹھیک؟ جو خاص ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اسی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ لہذا ہم جب یہاں پر ترجمہ کریں گے تو یہ ہوگا کہ صرف اور صرف آپ کی اور آپ کے سوا کسی کی نہیں، ٹھیک؟ یہ دیکھیں یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب ایا کا آتا ہے، ایک تو آپ کی اور آپ سے، ٹھیک؟ یہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ کی اور آپ سے، صرف اور صرف آپ کی اور صرف اور صرف آپ سے۔ تو یا کا ہو گیا صرف اور صرف آپ کی، آپ کے سوا کسی کی نہیں۔ نعبدو، نعبدو میں جیسا کہ میں پہلے بتایا تھا کہ جو نون ہے یہ مضارع کی علامت ہے جس کا معنی ہم آتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم اس کا ترجمہ جب کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ نعبدو اگر ہم اس میں سے نون کو الگ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس بچتا ہے عین با دال، جو کہ اس کا حروف مادہ ہے۔ اور میں حروف مادہ بتایا تھا کہ جو حروف مادہ ہوتے ہیں وہ اصلی حرف ہوتے ہیں اس کے، جس کے ذریعے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ اس میں جو استعمال ہو رہے ہیں کلمہ
इसका हम जो असल माना है हम इससे पहचान में आता है, और हरूफ मादा जो होते हैं हम उसी हरूफ मादा के जरिए हम जो है कलीमे को खोजते हैं डिक्शनरी में। ठीक, अगर हमें लुगत में इसको देखना हो तो हम इसी के जरिए देखेंगे। तो नाबुदु का हम यहाँ पर नून को हटाएं तो आइन बा दाल बच्चा हमारे पास। तो अबदा अबदा का माना होता है उसने इबादत की। ठीक, ये मुजारा का कलिमा है, और उसी के जब शुरू में नून लगता है, अबदा माजी का कलिमा है, और उसके शुरू में जब नून लगता है तो ये मुजारा बन जाता है। ठीक, तो जब नून लगा तो ये मुजारा का बन गया, यानी कि नाबुदु नून का माना हम होता है, और ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो नाबुदु मतलब हो गया हम इबादत करते हैं या करेंगे, ये दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक, याद रहे कि जो मुजारा है, मुजारा से मुराद जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल दोनों होता है। यानी कि हम जब मुजारा का कोई कलिमा देखेंगे तो उसका सिर्फ हम तर्जुमा ये नहीं करें कि जैसे नाबुदु हम इबादत करते हैं, नहीं, हम इबादत करते हैं या करेंगे, दोनों इसका माना लिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर नाबुदु का हो गया हम इबादत करते हैं या करेंगे। अब इसी तरह से इसके चार हरूफ हैं जो मुजारा के हैं, या है, ता है, अलिफ है, नून है। ठीक, अब ये जो चार हरूफ हैं अगर आप इन चारों को समझ लें तो आगे इंशाल्लाह और आसानी होगी समझने में। अभी देखिए जो है यहाँ पर सबसे पहला मुजारा की अलामत हमने यहाँ पर लगाया या, ऐन बा दाल था, अबदा उसने इबादत की या किया। अब यहाँ पर हम इसके साथ मुजारा की एक अलामत हर्फ या को लगाते हैं, या अबुदु वो इबादत करता है या करेगा, दोनों माना होगा, वो इबादत करता है या करेगा। ताबुदु ता का माना तुम होता है, तो ताबुदु तुम इबादत करते हो या करोगे। और आबुदु जो अलिफ आता है इसके मैं तीन हालत बताया था, उसमें से एक है कि मैं, और ये जब मुजारा में होता है तो उसका माना मैं होता है। तो आबुदु मैं इबादत करता हूँ या करूंगा। उसी तरह से इसके साथ जब लगाएंगे हम नून को तो नाबुदु हम इबादत करते हैं या करेंगे। ठीक, आबुदु मैं इबादत करता हूँ या करूंगा, नाबुदु हम इबादत करते हैं या करेंगे। अब देखें कलिमा है अबदा। ठीक, असल कलिमा क्या है, ऐन बादाल से बना है अबदा, और यही इसका असल कलिमा है। अब इसके साथ जो है हम सारे कलिमे को अगर हम सारी अलामात को मिला करके देखें तो हमें यहाँ पर जो है एक एक करके सारे माने मिल जाते हैं, और इसके जो है अलामत की वजह से उसी से मिलते जुलते हम इसके तर्जुमे करते हैं। ठीक, तो बहरहाल हम इसको अभी रहने देते हैं, बाकी इंशाल्लाह आगे का देख लेते हैं ताकि और आसानी हो समझने। फिर उसके बाद वहां से देखने के बाद इंशाल्लाह मैं इसको दोबारा अगर वक्त रहा तो इसको भी बता दूंगा। ठीक, तो इया के नाबुदु, नाबुद का माना जो है वो हम का हो गया, हम इबादत करते हैं या करेंगे। इया का सिर्फ और सिर्फ आपकी, आपके सिवा किसी की नहीं। ठीक, इया का नाबुदु हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं। और जब यहाँ पर जोर लगाना हो, ठीक, तो हम वहां पे क्या करते हैं, ही का उर्दू अदब में ही का इस्तेमाल करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं। ठीक, और जब ईया आता है तो ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी ही इबादत करते हैं। वह ईया क्या, और सिर्फ आप से ही। ठीक, और सिर्फ आप से ही। यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है ये मैंने मेरा नहीं है, ठीक है, मैंने कहीं और से ले लिया इसको।
आप सभी को समझाने के लिए क्या है कि थोड़ा सा भी मुश्किल चला, इस वजह से एक हफ्ते तक क्लास भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वजह से भी मैं अभी अपने स्लाइड्स में नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से मैंने इसको लिया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ना देखें, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ उस पर गौर करें। इंशाल्लाह आपको इसका पीडीएफ जो है रोमन में मिल जाएगा, जिससे कि आपको इंशाल्लाह और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर देखें या का, यहाँ पर जब ऐसे है तो ये कहीं कहीं मैंने दो दो हालत बताया ना कि दो बार इसके माने आते हैं, कहीं पर ही आता है सिर्फ और सिर्फ आपसे और सिर्फ और सिर्फ आपकी। ठीक, ये दोनों माना आते हैं। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर या क्या, और सिर्फ आपसे ही। ठीक, यहाँ पर आपसे ही का इस्तेमाल हम जरूर करेंगे यहाँ पे। नस्तईन, नस्तईन का अगर हम तर्जमा करेंगे तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमने नून को अलग करना है, क्योंकि अभी हम इसको कितनी बार पढ़ते आ गए हैं कि नून क्या है, नून मुजारा की अलामत है जिसका माना हम होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, नून को अलग कर देंगे। ठीक, नून को अलग कर दिए, अब क्या बचता हमारे पास, सीन ता आइन या नून। ठीक, तो आइन में जो है, अब इसमें आखिर में देखें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर कि या नून जो है ये जमा की भी तो अलामत है। ठीक, तो इसका ख्याल रखें कि देखें जो या नून जो जमा वाला होता है उसके आखिर में पेश नहीं होता। ठीक, नून पर पेश नहीं होता है, तो इसलिए ये इसका कलिमा है। ठीक, तो आयन या नून को अलग करते हैं। आगे हमारे पास सीन ताबस्ता, सीन साकिन है, तो हम इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, इस्ता बोलेंगे इसको, क्योंकि अलिफ लगाते हैं हम, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो जब हमने इसको इस्ता बनाया तो हमें समझ में आता है कि इस्ता जो आता है ये तलब करने के लिए आता है। ठीक, जब हम कोई चीज चाहते हैं, किसी चीज को हमने तलब करना है, तो उसके लिए इस्ता का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो आइन का मतलब होता है मदद। ठीक, आना मतलब होता है उसने मदद की, जो आइन वो मदद करता है या करेगा, और आइन का मतलब होता है आइन उनका मदद करना, मदद। ठीक, तो यहाँ पर नस्तईन है, तो अभी नून का माना हो गया हम, इसका मतलब हम तलब करते हैं, हम चाहते हैं। आइन का मतलब हो गया इनका मदद, यानी कि नस्तईन हम मदद चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखें इय्या का नस्तईन का हो जाएगा हम और हम आपसे ही मदद चाहते हैं। ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा हो गया। अभी क्या है कि मैंने पहले ही बोला कि वक्त थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये जूम जो अभी चल रहा है वो फ्री हो रहा है, तो जो है प्रोवर्जन खत्म हो गया, तो उसका थोड़ा सा मसला हो गया है। हाँ, इंशाल्लाह कल से लंबी क्लास हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आप सभी से बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। दरअसल मुझे अभी अभी पता चला, जब क्या है कि सुबह से कोई अभी क्लास चल नहीं रहा है, तो अभी मैं जब क्लास लेने के लिए तैयार हुआ तो अभी मुझे पता चला कि आज हमारा लास्ट डे था और ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ठीक, तो इंशाल्लाह कल से सही हो जाएगा। तो कल से इंशाल्लाह अच्छे से क्लास से करेंगे। ठीक, और इसमें जो भी आपको मुश्किल हो हुआ उसके लिए मैं आप सभी से बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आज का अभी का जो दर्स है शॉर्ट में मैंने समझाया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आया है तो आप इससे पहले की क्लास को देखें, इंशाल्लाह आपको यह भी बेहतर समझ आएगा। तो अभी थोड़ा टाइम है, तो अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।
जो अनम्यूट करना चाहते हैं अपने से अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी सर, आज की क्लास में मेरे को कुछ समझ में आया, लेकिन इससे पहले के जो क्लासेस थे मैं समझने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था ठीक से, क्योंकि एक्चुअली मेरे को अरेबिक सही से नहीं आता पढ़ने के लिए, हम्म, पढ़ने, और उर्दू में भी मैं वीक हूँ, तो ठीक। इसीलिए खैर मेरे को आपसे पूछना था कि जमा की कितनी अलामतें होती हैं और कैसे पहचाने। जमा की जो अलामत है वाव अलिफ वाव नून और या नून है, ठीक। ये तीन अलामत हैं, वाव अलिफ वाव नून या नून, ठीक है। और इसमें देखें जो आखिर में है या नून, उसमें थोड़ा सा मसला होता है कि वो या नून जो है ये तस्निया यानी कि मुसन्ना, तस्निया कहें या मुसन्ना कहें दोनों एक ही है, ठीक। उसकी भी अलामत है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं लोग कि इसमें या नून दोनों का है, तो इसमें हम पहचाने कैसे कि यही है। तो इसकी पहचान यह है कि जो मुसन्ना या तस्निया की जो अलामत है उसमें नून पर जेर होता है, और जो जमा की है उस पर नून पर जबर होता है, बस इतने से पहचान है इसकी। और आखिर में वाव अलिफ वाव नून या नून, ठीक। ये जिस भी कलीमे में रहेंगे असल कलीमे के इलामा जब रहेंगे तभी समझ में तभी वो रहता है, ठीक। जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया कि कौन सा कलीमा था, नस्तईन था इसमें। जी यहाँ पर देखें नस्तईन है, तो अब देखें यहाँ पर अलामत में या नून जो है उसमें मैंने क्या बताया कि नून पर जबर रहेगा, ठीक। उसको अरबी में जी फतहा बोलते हैं। उसको जैसे कि हम लोग तो जानते हैं कि ये जबर जेर पेश, इसी तरीके से हम इसको जानते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखें ये सब पेश लगा हुआ है, लेकिन जो अगर जमा की अलामत रहेगा तो उस पर जबर रहेगा, ठीक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में एक होगा। अब देखिए ये चीज इसमें और है। अभी जैसे कि आपका ये भी सवाल है, अब मान लीजिए कि जो या नून है आखिर में नून के जेर रहेगा, तो भी अगर ऐसे देखे हैं जैसे यौमुद्दीन है, तो अब इसमें जो दीन है इसमें नून पर कसरा है, नून पर जेर है, लेकिन ये जो है ये अलामत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम तीन हुरूफ को देखेंगे। अब हमें इसमें ये तो पता है कि अलिफ लाम जो है ये एक अलामत है, ठीक। तो हम अलिफ लाम को अगर हम अलग करते हैं फिर हमारे पास तीन हुरूफ बचते हैं, यानी कि ये अगर अलग से होता है तो तीन हरूफ के, तो ये अलामत माना जाता है जमा की, अगर नहीं है ये नहीं है। जी अभी मालिक में दिखा हुआ है, आगे देखें अब देखिए यहाँ पर आलमीन में अल आलमीन में या नून है। अब इसमें हम सारे हरूफ को देख लेते हैं। अलिफ लाम इसमें अलग से है, वो हम जानते हैं कि अलिफ लाम अलग से होता है। अलिफ लाम को अलग किए, आलम को हम अलग कर लेते हैं, ठीक। हमें इसमें आयल लाम मीम से जो है हरूफ मादा में मिल जाते हैं, हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक। अगर हम ऐसे ही नहीं मिलते हैं तो हम इसके जो है एक एक करके देख लेंगे, बीच का वाले इधर का देखेंगे। उसके बाद हमें आखिर का यहाँ पर देखना है कि आखिर में जो बच रहा है इसका हिस्सा है या नहीं है, ठीक। अगर इसका हिस्सा नहीं है तो ये एक अलामत है अलग से, अगर हरूफ मादा निकालने के बाद भी बच रहा है तो। कोई डाउट है? और किसी को कुछ डाउट है?